Good morning, my dear students. Today we are going to study something important, yes, related to our ancient India. Shushruta, a peep into the past, 3.4. So 3.4, the chapter name is Shushruta, the name of a boy. And a peep into the past means a look into the past. पहले कैसा था? So in this chapter we have two parts. Part 1. Shushruta was indeed a bright student of veterinary medicine. Now you all know what is the meaning of veterinary. Veterinary means the doctor of animals. Vet, V-E-T हम लोग बोलते हैं. Animals के doctors को हम लोग V-E-T, vet बोलते हैं. So Shushruta was a bright student of veterinary medicine. So related to animals. His teacher Shalihotra once decided to test him. So his teacher, who was his teacher? Shalihotra. He decided to test him. He asked Shushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. So Shalihotra asked Shushruta what all things he'll need to perform a surgery. Shushruta very quickly listed down all the instruments and the medicines that would be needed. So he immediately told all the instruments and medicines. So the teacher told, 3 things are missing. Shalihotra said. So Shalihotra told, 3 things are missing. Which are the 3 things? Confused Shushruta looked at him. So Shushruta felt, oh, I told all the answers correctly. But still the teacher is saying that there are 3 things which is missing. So he was confused. I'll give you a week to find them, Shalihotra consoled. Then Shalihotra told, no problem. आपको आ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको एक 1 वीक देता हूँ. Curious to find out what those 3 things were, Shushruta observed his teacher carefully for the next 1 week. So he was eager, उसको जानना था, अरे क्या है वो 3 चीज़ जो मैंने बताया नहीं. So what he did, he observed his teacher. उन्होंने उनके टीचर को बराबर से रोज़ ध्यान दिया. 1 week. Before operating the horse, Shalihotra observed every part of the horse. So जब भी उन लोग हॉर्स का कुछ ऑपरेशन करते या कुछ भी प्रॉब्लम उस हॉर्स को होता तो उसको ठीक करने के लिए तो टीचर शालिहोत्रा क्या करते थे? ही यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स, सारे पार्ट्स प्रॉपरली देखते थे. एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग. एंड सुश्रुता को पहला थिंग मिल गया. What was that? A good veterinarian should have an eagle's eye. Now eagle को आँख कैसा रहता है? एकदम sharp. So from the distance, height only he can find out its prey. ऊपर से उसको समझ जाएगा कि किस पे छलांग मारना है. So a good veterinarian should have an eagle's eye. ये पहला point. Then Shalihotra treated the animal as if it were his own, balancing science and compassion equally. सेकेंड क्या देखा सुश्रुता ने कि शालिहोत्रा कितना अच्छे से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं तो एकदम डायरेक्ट, रूडली नहीं घुसा रहे, एकदम अच्छे से. आपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया रहेगा, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई डॉक्टर्स अपने को ऐसे कुछ बातों में मग्न कर देते हैं कि इंजेक्शन लगता है समझ ही नहीं आता है, राइट. सो वैसे थे सुश्रुता के टीचर शालिहोत्रा. एंड लो, सुश्रुता फाउंड हिज second rule. A good veterinarian should have a lion's heart. So good veterinarian को कैसा रहना चाहिए? Lion का heart. Lion कैसा है? Selfish नहीं है. उसको अगर भूख नहीं रहेगा तो वो किसी को ट्रबल नहीं करेगा. उसके सामने से कितना भी खाना जाने तो वो अटैक नहीं करेगा. Similarly, second कैसा रहना चाहिए? Second point, he should have a lion's heart. So प्यार से ट्रीट करना चाहिए एनिमल्स को. Shalihotra helped the horse recover after the surgery. So इसकी टीचर शालिहोत्रा क्या करते थे? ऑपरेशन होने के बाद उनको वापस नॉर्मल लाने के लिए बहुत हेल्प करते थे. Shushruta came out to know that a good veterinarian should have a mother's touch too. तो उसने पहचान लिया कि हाँ, थर्ड रूल क्या है? मदर्स टच जैसा रहना चाहिए. Now if we are ill, हम लोग बीमार हैं तो मम्मी ऐसे हमारे पास रह के हमारे सर से हाथ फेरे तो भी हमको बहुत अच्छा लगता है. यस. सो सिमिलरली अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ लायंस मदर्स टच.
लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑन सर्जरी. उसके बाद ये जो डिसाइपल है, ये जो स्टूडेंट है, उन्होंने एक बुक लिखा सर्जरी के ऊपर. यस चिल्ड्रन, दिस पार्ट 1 इज क्लियर. सो व्हाट आर द 3 qualities or 3 things of a good veterinarian? Yes, first he should have a good eagle's eye. He should have eagle's eye, then lion's heart and mother's touch. Yes children. Now second comes part 2. So as we studied earlier that Sushruta wrote a book on surgery. Now part 2. The tradition of veterinary therapy developed very early in India and this has survived to the present time. So हमारे देश में पहले से ही एनिमल्स को ट्रीटमेंट देते थे. Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for a specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals. आयुर्वेदा आपने सुना रहेगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. यस, तो उसमें पहले से ही एनिमल्स को कैसे डिजीज़ से बचाना चाहिए और डिजीज़ आए तो कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये सब बताया गया है. सम ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे. थोड़े थोड़े ऐसे भी ट्रीटमेंट्स हैं जो बाहर गाँव किसी को पता नहीं है, बट इंडिया में अभी भी फॉलो करते हैं. The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled Aswa Ayurveda Siddhanta. तो हमारा सबसे जूना एक बुक है जिसमें सब लिखा गया है किस बारे में, अश्व आयुर्वेदा. उसका नाम क्या है, अश्व आयुर्वेदा सिद्धांत. इसका मतलब क्या है, कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस. तो इसमें अश्व आयुर्वेदा सिद्धांत बुक में सब पूरा लिखा है रिलेटेड टू हॉर्सेस, एट्रीब्यूटेड टू शालिहोत्रा. सो इस शालिहोत्रा के लिए लिखा गया है. अराउंड 2350 BCE द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. तो शालिहोत्रा कौन था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. सब्सिक्वेंटली वेरियस ट्रीटीज ऑन हॉर्सेस एंड डिजीजेस ऑफ हॉर्सेस वर कंपोज्ड. सो स्लोली बाकी और भी बुक्स ऐसे आने लगी. नकुला, वन ऑफ द 5 पांडवास, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ. सो 5 पांडव में से जो एक था नकुल, वो भी एक बड़ा हॉर्स स्पेशलिस्ट था. अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा, दैट इज थेरेपेटिक्स ऑफ हॉर्सेस, रिटन बाय नकुल. तो सबसे अच्छा बहुत सारा बुक्स है, उसमें से बेस्ट बुक कौन सा था, अश्व चिकित्सा. उस किसने लिखा था, रिटन बाय नकुल. थेरेपेटिक्स मतलब रिलेटेड टू हीलिंग ऑफ डिजीज़. भी डिजीज़ आया है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो अश्व चिकित्सा किसने लिखा है, इट वॉज रिटन बाय नकुल. सुश्रुता, डिसाइपल ऑफ शालिहोत्रा, रोट ऑन एनिमल सर्जरी. हमको मालूम है सुश्रुता ने एनिमल सर्जरी के ऊपर बुक लिखा. This made people aware of surgical methods, dressing of wounds, bandaging of fractures, etc. तो वो बुक के वजह से लोगों को समझ आया कि ओह, ड्रेसिंग ऑफ वूंड, कुछ जख्म हो गया तो उसको ठीक ड्रेस कैसे करना है, उसको क्लीन कैसे करना है, बैंडेज कैसे करना है. लेटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses and elephants as well as cattle. बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पीरियड में वेटरनेरियंस कौन है, एनिमल्स के डॉक्टर्स जो एनिमल्स को ठीक करते हैं, वो आर्मी के साथ जाते थे. क्यों, ताकि वॉर में, लड़ाई के समय में अगर घोड़ा बीमार पड़ गया, एलिफेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गया या दूसरा कुछ एनिमल्स को प्रॉब्लम हो गया, तो तभी के तभी वो वेटरनेरियंस उनको ट्रीट करेंगे मेडिसिन्स दे के. द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल्स. तो अशोका, हमको मालूम है किंग अशोका, उन्होंने वेटरनरी हॉस्पिटल पहला बिल्ड किया ऑफ द वर्ल्ड. He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms. तो उन्होंने बहुत सारा ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स कल्टिवेट किया ताकि
बोथ ह्यूमन बींग्स को भी काम आए, एनिमल्स को भी काम आए, उनके एम्पायर में भी एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स, उनके आजू बाजू के किंगडम्स में भी. Giving the animals general tonics and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health. एनिमल्स को रेगुलरली टॉनिक देना, मेडिसिन देना, ताकि उन लोग अच्छे हेल्थ में रहे. प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस वॉज ऑल्सो गिवन इम्पॉर्टेंस. सो डिजीज़ आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस दिया था उसका भी. Cleanliness of animals, maintenance of stalls and stables, quality of food, disadvantages of overfeeding were looked after. So animals को साफ रखना चाहिए, उनको खाना अच्छा देना चाहिए. वो जहाँ रहते हैं, जैसे हॉर्स, where does the horse stay? Lives in stable. Yes, तो stalls वो सब अच्छा क्लीन रहना चाहिए, उनको खाना अच्छा क्वालिटी का देना चाहिए. एंड ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए, कम भी खिलाना नहीं चाहिए. ज़्यादा खिलाए तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो सब बताया था. यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाई प्रोडक्ट्स वॉज ऑल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स. हमारे पूर्वज, मेरे डैडी के डैडी के डैडी के डैडी, सब आपके वैसे, उन्होंने ये जो एनिमल्स से हमको प्रोडक्ट्स मिलता है, एनिमल बाई प्रोडक्ट्स, मिल्क, काऊ डंग, उसका भी उन्होंने यूटिलाइज किया, यूज़ किया. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोया एक्सेट्रा was a common practice and still is. So दूध से हमको क्या क्या मिलता है वो सब उन्होंने स्टार्ट किया यूज़ करना. Chicken was used for its meat while sheep was utilized for its wool. So chicken मीट खाने में and sheep से हमको क्या मिलता था, wool. Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, it is not chosen as a career by many due to lack of awareness. इंडिया में बहुत सारा नॉलेज है वेटरनरी के ऊपर, वेटरनरी साइंसेस, एनिमल रिलेटेड, एनिमल को कैसे ट्रीट करना है, बट हम लोग यहाँ पे चूज़ नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. हमको ज़्यादा पता नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री टुडे, इंडिया नीड्स मोर वेटरनेरियंस हु एम्फसाइज विथ animals and give their 100% to the profession. इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री. हमको मालूम है इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर. सो बहुत सारे लोग, जो लोग सिंपैथी दिखाते हैं, प्यार है उनको एनिमल्स के ऊपर, उन लोग ये करियर चूज़ करना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर्स बनने का. येस, दे शुड गिव 100% टू द प्रोफेशन. 100% उन लोग अपना जी जान लगा देना चाहिए ये प्रोफेशन पे. Is this clear, children? Written by Dr. Chirantana Matakari. Yes. So in this chapter 2 parts are there, part 1, part 2. Clear? Okay, children. Bye.